Hello my dear lovely students, welcome back to your class. My dear students, today what we are going to learn? See, today we are going to learn your English new lesson. And what is the name of a lesson? You don't know or you know? Okay, it's not problem if you don't know, I'll say. The name of the lesson is, it's very nice, you will love the name of the lesson. Why? Why you will love the name of the lesson? I'll say because the name of the lesson I also like very much. See, look on board. The name of your lesson is The Story of Ice Cream. What is the name of the lesson? The Story of Ice Cream. I know my dear students, you love the ice cream because I also love ice cream very much. I love eating ice cream, and you know my favorite flavor of ice cream is chocolate flavor because chocolate chips are also included in that flavor. I love eating chocolate flavor ice cream, cone ice cream, uh, cornetto ice cream. Cornetto ice cream is very nice. It's best ice cream I have ever tasted. Cornetto one. You also taste. So our today's lesson is based on ice creams. As you know that there in the world there are different kinds of ice cream. जैसे कि आपको पता है पूरे वर्ल्ड में अलग अलग टाइप्स की आइस क्रीम्स है. For example, look on board. See, it is cone shaped ice cream. At cherry at the top. कोन में चेरी रहती थी ना पहले के जमाने में जो आइसक्रीम सेल करते थे उस पे पहले चेरी रहती थी. लाइक दिस. सी, नेक्स्ट इज लाइक दिस शेप ऑफ आइसक्रीम्स. नेक्स्ट पहले अपन येलो कलर की फ्लेवर की, ऑरेंज कलर के फ्लेवर की आइसक्रीम्स खाते थे ना. स्कूल से निकलने के बाद बाहर आइसक्रीम वाला खड़ा रहता था, उससे आइसक्रीम लेते थे. आई हैव ईटन दैट आइसक्रीम, दैट इज ऑल्सो वेरी नाइस. नेक्स्ट, triangle shaped ice creams. It is also very nice. But nowadays this box shaped ice cream is discovered, and many other shapes ice creams are discovered. For example, cornetto. I love cornetto shape. It is very nice. The shape is also nice and the taste is also very nice. So you might be thinking that teacher has gone crazy about ice creams. Yes, I am crazy about ice creams because I love ice creams very much. And I know all the children, you also like ice creams. So today our topic is the story of ice creams. The story of ice cream means from where we have got the idea of making ice cream, who has invented to make ice cream. First, in olden days, how ice cream used to how people used to make ice creams. This we have to see in our today's chapter. See, in this chapter, पहले के लोग आइसक्रीम कैसे खाते थे, आइसक्रीम का आइडिया कैसे आया, किसने बनाया पहले आइसक्रीम, आइसक्रीम बनाते वक्त उसमें क्या क्या ऐड करते, ये सारी चीजें हम कहाँ देखेंगे. We will see in our today's lesson. So are you excited? I am also very excited to know how was ice cream invented, who invented, and which things are used to make ice creams. So without wasting much of our time, come we will start our today's lesson. So my dear students, take your page number 40. Now we will start our chapter number 6, the story of ice cream. Now my dear students, before starting the lesson, let me tell you one thing. When I will read the lesson, you will keep your finger on the line because this will help you to know that where I am reading, and you will keep your pencil also near. Why pencil? Because we will underline the hard words. Got it? Now we will start our chapter 6, story of ice cream. Now, in very cold region like Europe, snowfall take place instead of rain. Now, when water freezes in a lake or sea, it is called ice. When water vapor of the clouds freezes, it turns into soft and thin flakes of ice. Then it is called snow. When the upper layer of the snow presses the lower layer of snow, it becomes hard. And
turns into ice. Same thing happens in the middle and the upper Himalayas in the winter season. See my dear students, as you know, in winter season we feel very cold. Winter season में हमें बहुत ठंड लगती है, तो बट लेकिन कुछ कंट्रीज में ठंड हमेशा रहती है. फॉर एग्जाम्पल यूरोप में भी ठंड हमेशा रहती है. तो यूरोप में जैसे बारिश नहीं होती है, बारिश की जगह क्या होता है, स्नोफॉल. स्नोफॉल मीन्स अ लिटिल सॉफ्ट, यू कैन से अ लिटिल सॉफ्ट वाटर फ्रीजेस एंड इट बिकम्स इनटू आइस. जैसे पानी जम के आइस बन जाता है, बर्फ बन जाती है, वैसे ही स्नोफॉल होता है. बट वो जो स्नोफॉल पे जो स्नोफॉल होता है ना, जो बर्फ गिरती है, वो बहुत ही सॉफ्ट रहती है. तो वो जो स्नोफॉल में एकदम सॉफ्ट वाली स्नो रहती है, थिन फ्लेक्स रहती है, सॉफ्ट एंड थिन फ्लेक्स ऑफ आइस, उसको क्या बोलेंगे, स्नो. नाउ नेक्स्ट पैरा. पीपल ऑफ यूरोप एट water ices hundreds of years ago. Alexander the Great of Greece enjoyed wine mixed with snow, ice and honey. The Roman Emperor Nero loved fruit juices with ice. Now my dear students, in past मतलब पास्ट में पहले के लोग क्या करते थे, यूरोप में पहले के लोग क्या खाते थे, एट वाटर आइसेस जो उनको बहुत ज़्यादा पसंद थी. अलेक्जेंडर दिस ही इज अलेक्जेंडर को क्या पसंद था, आइस, हनी, किसके साथ पीना, स्नो के साथ, मतलब बर्फ़ के साथ आइस, हनी, मिक्स्ड वाइन, मतलब ग्लास में वाइन भी है, बर्फ़ भी है, आइस भी है और हनी भी है. तो ये सब चीज़ें मिक्स करके पीना अलेक्जेंडर को बहुत पसंद था. नाउ ही इज रोमन एम्परर लव्ड फ्रूट जूस विथ आइस. रोमन एम्परर को जूस बहुत पसंद था, बट किसके साथ, आइस यानी कि बर्फ़ के साथ. तो वो भी उसी के साथ बर्फ़ के साथ जूस को एंजॉय करते थे. मतलब बर्फ़ उन्हें बहुत पसंद थी, अलेक्जेंडर को भी पसंद थी और रोमन एम्परर को भी पसंद थी. इन विंटर सीजन द फैट रिच पोर्शन ऑफ मिल्क बिकम्स टू इट्स अपर लेयर. इट इज कॉल्ड क्रीम. इन ओल्डन डेज व्हेन देयर वर नो क्रीम सेपरेटर्स, people enjoyed this cream added with cold. Then people started mixing it with sugar to make it more tasty. In this process it melted. Then ice was added to harden it again. We can imagine how the ice cream came into existence. देखिए, पहले के ज़माने में कोई मशीन तो नहीं थी कि चलो क्रीम जमा लेते, या कोई मार्केट तो नहीं था कि रेडीमेड जहाँ से क्रीम मिलेगी. पहले के लोग क्या करते थे कि जो मिल्क रहता था, मिल्क का जो अपर लेयर रहता था, मतलब मलाई, मिल्क की जो मलाई रहती थी उसमें बहुत ही फैट रिच पोर्शन रहता था. ठीक है, तो ये लोग क्या करते थे, मलाई में यानी कि मिल्क के अपर पोर्शन को वो लोग एकदम क्या बोलेंगे, मिक्स करते थे, ऐसे गोल गोल फेंट के उसको फैट थिक क्रीम बनाते थे. तो उसको वो लोग क्या बोलते थे, क्रीम. मिल्क के अपर पोर्शन यानी कि मलाई को अच्छे से घोट के क्रीम बनाते थे, क्योंकि पहले तो रेडीमेड क्रीम मिलती नहीं थी, है ना. In older days when there was cream separators, people enjoyed this cream hardened with cold. तो वो मलाई को ऐसे फेंट के people उसको enjoy करते थे, किसके साथ, आइस यानी कि बर्फ़ के साथ. फिर उसको और टेस्टी बनाने के लिए, मलाई, घोटी हुई मलाई को और टेस्टी बनाने के लिए उसमें शुगर ऐड किया. क्यों शुगर ऐड किया, क्योंकि उसको और मीठा सा टेस्ट मिलेगा. then the ice added to harden it again, मतलब उसमें आइस डाला गया कि उसको और अच्छा टेक्सचर मिलेगा. अब ये सब प्रोसेस से हम इमेजिन कर सकते हैं कि आइसक्रीम कैसे बनती है, हमारे पास आइसक्रीम कैसे एक्सचेंज हुई, मतलब हमारे को कैसे आइडिया मिला आइसक्रीम बनाने का. नेक्स्ट,
A part of China has long chain of high mountains. People there developed a new idea of thick ice cream. So they mixed a little of fine flour with milk, boiled it to homogenize and cooled. Now here homogenize is a hard word, so we will underline it. Homogenize and cooled it. The further mixed some plant flavors to it. Then they put it in ice to harden. See, from a part of China, मतलब चाइना के लोग क्या करते थे कि चाइना के पास तो बहुत सारे हाई माउंटेन्स है ना। अगर बॉर्डर में मैप में अगर आप देखो तो चाइना के बॉर्डर में बहुत ही हाई माउंटेन्स है। तो वहाँ के लोग क्या करते थे, उनको आइसक्रीम बनाने का एक आइडिया मिला। क्या आइडिया मिला? दे मिक्स्ड अ लिटिल फाइन फ्लोर विथ मिल्क, मतलब उन्होंने फ्लोर को, आटे को मिल्क के साथ मिक्स्ड किया, उसको बॉईल किया, ठीक है। फिर बाद में बॉईल करने के बाद उसको कूलिंग पे रखे। कूलिंग के बाद उसमें कुछ फ्लेवर्स ऐड किए, कलरिंग के लिए, टेस्ट के लिए। फिर उन्होंने क्या किया, उसको कहाँ रखे? आइस में रखे, थोड़ा सा कड़क होने के लिए। Then they got the idea to make the ice cream. इसी प्रोसेस के थ्रू से उनको क्या बनाने का आइडिया आ गया? आइसक्रीम बनाने का आइडिया मिला। It is said that Marco Polo brought a recipe of ice cream from China to Italy. Means मार्को पोलो नाम का एक इंसान, एक शख्स चाइना से क्या लेके गया? आइसक्रीम बनाने की रेसिपी लेके गया। कहाँ लेके गया? इटली में। So my dear students, take your next page. About 700 years ago, from Marco Polo's country, it reached to France and then to England. Means 700 years ago, मतलब 700 साल पहले मार्को पोलो की कंट्री से, मतलब इटली से आइसक्रीम की रेसिपी कहाँ गई? फ्रांस गई। और फ्रांस से आइसक्रीम की रेसिपी कहाँ गई? इंग्लैंड गई। ऐसे ही पहले चाइना से फ्रांस, फिर फ्रांस से इंग्लैंड, फिर इंग्लैंड से अदर कंट्रीज़ में धीरे धीरे आइसक्रीम की रेसिपी आगे कैरी फॉरवर्ड हो गई। नाउ इफ़ आइसक्रीम इज मिक्स्ड विथ सॉल्ट, its cooling power is increased. This phenomena is used in making kulfi, a traditional Indian ice cream. A mixture of condensed milk, sugar, nuts and saffron is placed into metal cones. Their lids put on and sealed with dough. The cones are placed in a large container of ice and salt to freeze. It is said that kulfi was promoted by the Mughal emperors. They used to have ice brought from the Himalayas. देखिए अब इंडिया में आइस को मिक्स करते थे सॉल्ट के साथ, क्योंकि सॉल्ट यानी कि नमक के साथ मिक्स करने पे आइस की कूलिंग पावर बढ़ जाती थी। तो इसी फॉर्मूले को इंडिया में यूज़ किया गया, क्या बनाने के लिए? कुल्फ़ी पसंद है ना सबको? मुझे भी बहुत पसंद है। इंडिया में कुल्फ़ी एक ट्रेडिशनल इंडियन आइसक्रीम है, क्योंकि कुल्फ़ी तो हर कोई खाता है और हर किसी को पसंद भी है। और कुल्फ़ी कैसे बनती है? इट इज़ अ मिक्सचर, वो एक मिक्सचर है किसका? मिल्क यानी कि दूध, शुगर यानी कि शक्कर, नट्स यानी कि ड्राई फ्रूट्स, काजू बादाम पिस्ता, और सैफरॉन। सैफरॉन मतलब क्या? सैफरॉन किसे बोलते हैं? सी वी विल अंडरलाइन द वर्ड सैफरॉन। सैफरॉन इज प्लेस इनटू मेटल कोन्स, मतलब ये सब मिक्सचर हम एक कोन में डालेंगे, ठीक है। कोन को एकदम टाइट बंद करेंगे, उसको सील करेंगे डो से। डो मीन्स आटे से, आटे को डो बोलते, तो उसको अच्छी से सील कर देंगे ताकि उसमें हवा पास ना हो। फिर कोन्स को एक लार्ज कंटेनर में मीन्स बॉक्स में कहाँ रखेंगे? फ्रीज करने के लिए बर्फ़ में रखेंगे। देन इट इज़ सेड दैट कुल्फ़ी वॉज प्रोमोटेड, मतलब कुल्फ़ी बनने के बाद ये बताया गया कि कुल्फ़ी मुग़ल एम्परर्स ने बनाना स्टार्ट किए, बिकॉज मुग़ल एम्पर यूज टू ब्रिंग आइस फ्रॉम हिमालयाज। मुग़ल एम्परर्स को आइस कहाँ से लाना पड़ता था? हिमालयाज से लाना पड़ता था। नाउ नेक्स्ट,
Modern ice cream came from America. In the beginning, it was called cold custard. In reality, it was much less in cream content but more creamy in look and thickness. Polly Madison, the wife of USA President Madison, put the custard in an icebox. It was much liked by all the guests. She called it ice cream. मीन्स मॉडर्न टाइम्स में मतलब आज के ज़माने में आइसक्रीम कहाँ से आई थी? अमेरिका से आई थी. इन द बिगनिंग इट वॉज कॉल्ड कोल्ड कस्टर्ड. मतलब स्टार्टिंग में आइसक्रीम को कोल्ड कस्टर्ड यानी कि ठंडा दही बोला जाता था. बट उसमें क्रीम कंटेंट बहुत ही ज़्यादा क्रीमी लुक देता था और थिकनेस यानी कि गाढ़ा भी रहता था. तो पोली मेडिसन, अब पोली मेडिसन कौन है? वाइफ है यूएसए प्रेसिडेंट की. यूएसए प्रेसिडेंट कौन है? मेडिसन. तो मेडिसन की वाइफ ने क्या की कि उसमें जो कस्टर्ड है उसको और थिक बनाने के लिए उसको क्या करिए, उसको फ्रीज कर दिए. मतलब बर्फ़ में रख के उसको थोड़ा सा और फ्रीज यानी कि कड़क बना दिए और उसको गेस्ट को सर्व की. द गेस्ट लाइक इट एंड देन शी कॉल्ड इट आइसक्रीम. मतलब गेस्ट को वो इतना पसंद आया कि मेडिसिन ने उसको नेम दे दी आइसक्रीम का. तो ऐसे ही वो थिक पोस्चर को क्या नाम मिल गया? आइसक्रीम. इन 1846 नैन्सी जॉनसन मेड द फर्स्ट आइसक्रीम मिक्सचर. In 1851, the first ice cream factory in the world was opened in Washington. The first ice cream factory in India was set up in Mumbai in 1948. Means यहाँ से आइसक्रीम की फैक्ट्री ओपन हुई है और आइसक्रीम फैक्ट्रीज में बनना स्टार्ट हुआ है ना. पहले कहाँ बना था? सबसे फर्स्ट इन 1846 में जॉनसन में. नैन्सी जॉनसन ने फर्स्ट आइसक्रीम मिक्सचर ओपन किया था. फिर उसके बाद 1851 में फर्स्ट आइसक्रीम फैक्ट्री कहाँ ओपन हुई थी? वॉशिंगटन में. और वॉशिंगटन के बाद इंडिया में फर्स्ट आइसक्रीम फैक्ट्री कहाँ हुई थी? मुंबई में इन 1948. मतलब नैन्सी जॉनसन ने जो स्टार्ट करी थी उसके बाद फैक्ट्रीज ओपन होना स्टार्ट हो गई कंट्रीज़ में, है ना. पहले वॉशिंगटन में, फिर बाद में इंडिया में, ऐसे ही पूरे वर्ल्ड में. Milk, cream, custard, sugar, water, etc. is strained and blended in a mixture. This mixture is then heated to pasteurize. Now again pasteurize is a hard word. We will underline it. To destroy bacteria, butter or fat is added to the pasteurized mixture. In hot mixture, it's then whirled. Again hard word. WHIRLED. Around under high pressure. This makes the mixture smooth and creamy. It is then cooled quickly. Flavors like vanilla or chocolate, fruits and nuts are added. The flavored mixture is packed into different shapes and frozen. Finally, it is transferred into different containers for सप्लाई. अब देखिए जैसे आइसक्रीम बनाने की प्रोसेस इसमें बताई गई है. पहले मिल्क यानी कि दूध, क्रीम यानी कि मलाई, कस्टर्ड यानी कि दही, शुगर यानी कि शक्कर, वाटर मतलब पानी. इन सब को ब्लेंड मतलब स्टर्ड मतलब घोट दिया करते थे एकदम ज़्यादा. जैसे अंडा फेंटते ना वैसे घोट दिया करते हैं और उसको ब्लेंड करते मतलब मिक्सी में घुमा देते. पहले घोटा जाता है चम्मच से, फिर मिक्सी में ब्लेंड करते हैं, फिर इससे क्या बन जाता है? मिक्सचर बन जाता है. और इसी मिक्सचर को थोड़ा सा हीट देते हैं. मतलब हीट क्यों देते हैं? उसको पेस्चराइज मतलब एक हल्का सा गाढ़ा लिक्विड बनाने के लिए, ताकि उसमें जो बैक्टीरिया है वो डिस्ट्रॉय हो जाए. फिर बटर में फैट रहता है, ठीक है, और फैट में हल्का सा मिक्सचर भी रहता है. तो उसको सबको एक स्मूथ एंड क्रीमी पोस्चर मिल जाता है ये सब ब्लेंड करने से, फेंटने से, हीट करने से, ठीक है. फिर बाद में हीट करने के बाद उसको कूल यानी कि ठंडा किया जाता है, क्योंकि हीट में अगर कुछ डालो तो वो फट जाता है. तो फेंटने के बाद, ब्लेंड करने के बाद, हीट करने के बाद उसको कूल किया जाता है.
ठीक है। कूल करने के बाद उसमें फ्लेवर्स ऐड किए जाते हैं, जैसे वनीला, चॉकलेट्स, फिर फ्रूट्स, थोड़े थोड़े फ्रूट्स के पीसेस और नट्स यानी कि काजू बादाम पिस्ता ये सब ऐड करते हैं, और फ्लेवर्स भी ऐड करते हैं। फ्लेवर्स जैसे मैंगो फ्लेवर, चॉकलेट फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, वो मिक्सचर में ऐड करते हैं और डिफरेंट शेप्स देते हैं, जैसे कोन शेप हो गया, फ्रोज़न शेप, स्टार शेप, ऐसे अलग अलग शेप दे देते और उसको ठंडा करने के लिए बर्फ़ में रख देते। फाइनली दे आर ट्रांसफर्ड इनटू डिफरेंट कंटेनर्स फॉर सप्लाई, और ठंडा होने के बाद उन सबको अलग अलग कंटेनर्स में डाल देते हैं। कंटेनर्स में क्यों डालते हैं? क्योंकि एक एक कोन तो नहीं देंगे सप्लाई करने में, शॉप में देने के लिए या मार्केट में, तो उसको कंटेनर्स में डाल देते हैं, सप्लाई कर देते हैं। Nowadays you can enjoy cream the year round all over the world। मतलब आज के ज़माने में हम लोग क्रीम को इंजॉय कर सकते हैं सारी, मतलब पूरे वर्ल्ड में वो जितने भी क्रीम्स आइसक्रीम्स है उसको हम टेस्ट कर सकते हैं। अब तो बहुत ज़्यादा सप्लाई स्टार्ट हो गया है, तो हम अलग अलग टेस्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए, गर्ल टेस्ट कर रही है कप में, यहाँ दादाजी टेस्ट कर रहे हैं अलग वाली फ्लेवर, यहाँ गर्ल टेस्ट कर रही है अलग शेप की, और यहाँ बॉय टेस्ट कर रहा है अलग फ्लेवर अलग शेप की। मीन्स यू कैन टेस्ट द डिफरेंट शेप्स, द डिफरेंट फ्लेवर्स of ice creams। Understood? So my dear student, turn the page, take your page number 42. Now here, which flavor do you like? Means you like which flavor? See, the flavors are here. First is strawberry, second vanilla, third chocolate, fourth mango or pista। You can get a 2-in-1, मतलब आपको 2-in-1 मिल सकते, दो फ्लेवर एक साथ। चॉकलेट लेयर, कन्वर्टिंग एंड आइसक्रीम, मीन्स चॉकलेट लेयर के आपको दो टाइप के लेयर मिल सकते हैं। नाउ वंस एन आइसक्रीम सेलर इन अमेरिका ran out 2 containers। One of his friends used to make waffles, thick wafer like biscuits। He rolled up waffle into a cone। This was another 2-in-1 biscuit covered ice creams। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो, जैसे बिस्किट कवर्ड आइसक्रीम रहता है, जैसे अमूल का आप देख लो, एक थिक बिस्किट टाइप का आइसक्रीम रहता है, दोनों साइड बिस्किट रहता है और बीच में आइसक्रीम डबल कवर्ड आइसक्रीम रहता है, तो वो थिक इतना बड़ा बिस्किट कवर्ड आइसक्रीम रहता है। तो ये एक न्यू इन्वेंशन है बिस्किट कवर्ड आइसक्रीम में, मतलब साइड साइड में बिस्किट और बीच में आइसक्रीम। So my dear students, here we end our today's lesson। I hope you all have understood it। So my dear students, here we have completed our today's lesson, the story of ice cream। I think after reading the lesson, after understanding the lesson, you have come to know that where we have got the idea to make ice cream। अब lesson तो हमने read कर लिया, अब आपको समझ में आया कि आइसक्रीम बनाने का आइडिया कहाँ से आया, पहले आइसक्रीम किसने बनाया था, और इंडिया में आइसक्रीम कौन लेके आया फर्स्ट, पहले बर्फ कहाँ मिलती थी। And I think you have understood how to make ice creams and what ingredients are used: milk, sugar, fruits, nuts. These are used to make ice cream. So I hope you all have enjoyed our today's lesson। So it's the time to take leave। I'll see you in the next video। Till that time, stay safe, stay home, stay healthy, be happy, don't trouble your parents, and enjoy your day। Bye bye।